start. Yesterday, we introduced the climate of desert, and today we will discuss the few adaptations of the desert animals. First one is camel. Mainly, we have to discuss the adaptations of camel. Anji. Okay, I'm not going to write completely. I will just write the main adaptive feature. Reason you have to write it by yourself. As you all had done it in class 6, so you must know the reason you have to write. First, as you told me, it has long eyelashes. What is the reason of long eyelashes? Wait a minute, can you please raise the hand? Yes. Yes, to protect the delicate eyes from the sand. Yes, please. 2 layers, long eyelashes, and has 2 layers of it to protect its delicate eyes from sand. कल कौन सा? हाँ जी. They have. Speak loudly. Padded feet. Broad and padded feet. What is the reason of broad and padded feet? Yes, broad and padded feet help the camel to walk easily on sand. And I hope everyone is writing the adaptations along with the reason. If you are noting down, you are noting down with the reason. To walk, it helps the camel to walk easily on sand. Right? Yes, please. एक एक करके पहले आप बता. चलो. It has a hump on its back. Hump on its back that provides nutrition during the scarcity of food. ठीक है? Hump on its back to provide nutrition during scarcity of food. It has a long neck. What is the reason of this long neck? होती है, but आपका रीजन करेक्ट नहीं है. पहले रीजन सर्च करना, then we will write. It has a long legs to protect its body from the heat of the sand, because sand gets heated early. So to protect from that heat, they are having quite long legs. They are having long legs to protect their body from the heat of the sand. हाँ जी, अब आप बताइए. They can live without water for many days. तो इसका एक और भी हो सकता है. It can store a good amount of water in its stomach. ठीक है? It can store a good amount of water in its stomach, due to which it can live without water for many days. Right? It can store water in its stomach. हाँ जी, जल्दी बोलिए, नहीं तो कोई और बोलेगा. हरमन वेट. हाँ जी, बोलो. Yes, online students can also type your responses. Hurry up. Nostrils can be, nostrils can be closed
और नोस्ट्रल्स के रिलेटेड कुछ और भी है? हाँ जी, इट हैज, स्पीक लाउडली बच्चे। लार्ज पॉज, ये लिख दिया, ब्रॉड एंड पैडेड फीट, पॉज लिख दो। एक मिनट, लक्ष्य। हाँ ये भी है। हाँ जी लक्ष्य, एक मिनट वेट। मैम बन जाने, बोलो फटाफट। मैम मैम एक बार अडेप्टेशन का सील भी करवा दो। सील की हमारे सिलेबस में नहीं है बेटे, सो वी विल नॉट गो विद दैट। ओके मैम। ठीक है, जो हमारे सिलेबस में नहीं है वो क्यों करनी है? ये भी बच्चे हमने लिसन, कैमल के अडेप्टेशंस करने के दो मेन रीजन है। नंबर 1 तो आप लोगों ने की हुई, ठीक है। नंबर 2, हमारी बुक की बैक पे एक क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में बैक एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन है कि why the animals living in extreme regions have different types of adaptive features. Give reasons with examples. तो जब आपने एग्जाम्पल्स देनी है तो एग्जाम्पल दो एक्सट्रीम टेम्परेचर चाहिए आपको, एक एक्सट्रीम हॉट दैट इज डेजर्ट, दूसरा एक्सट्रीम कोल्ड दैट इज पोलर रीजन। ठीक है, एक्सट्रीम कोल्ड का हमने कर लिया, पोलर बियर की अडेप्टेशंस, एक्सट्रीम हॉट डेजर्ट की हम कर सकते। ठीक है, आपने क्या कहा था? इट स्वेट्स वेरी लिटिल, स्वेट्स वेरी लिटिल टू अवॉइड द लॉस ऑफ वाटर। हाँ जी, pass out dry feces or has a very large intestine, has a long large intestine, उसकी जो large intestine होती है वो काफी large होती है, काफी long होती है। What is the reason for this? To pass out dry feces, to pass out, आप सबने पढ़ा है ना, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब होता है ना, तो इसके जो फेसेस हैं वो बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं, सो दैट मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। हाँ जी, जहाँ पे स्वेट्स वेरी लिटिल लिखा है, यहाँ पे आप ये भी आप कर सकते हो, पासिस आउट यूरिन वेरी लिटिल, यूरिनेट भी बहुत कम करता है वाटर। बेटे आपने पढ़ा हुआ है ना, यू हैड स्टडीड कि कैमल इज एनिमल दैट कैन लिव विदाउट वाटर फॉर सम डेज। नहीं, फूड वाले में, फूड अलग चीज है, वाटर स्टमक में स्टोर होता है। हाँ जी, तो हैज थिक लेयर ऑफ स्किन टू प्रोटेक्ट इट्स from the thick layer of skin to protect it from the thorns. हाँ, it has thick lips, ठीक है, उसके लिप्स बहुत ज्यादा थिक होते हैं to bite off the thorns, thorns को बाइट करने। ओके जी, स्वेटिंग हो गया, लेग्स हो गई। हाँ जी, लॉन्ग लेग्स का टू प्रोटेक्ट, वो आप सर्च करो, अब आप जो पॉइंट्स बोलोगे वो मैंने यहाँ लिखूंगी। हाँ जी, टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द हीट, आई थिंक दैट इज सफिशिएंट। इसके अलावा जितने आपको आते हैं वो लिख लो। एक सेकेंड, मैं आई विल रिपीट ऑल ऑफ देम। हाँ जी बोलो। लिख सकते हो। हाँ जी, नोस्ट्रिल्स का मैंने लिखा नहीं था क्योंकि ठीक है, इट कैन क्लोज इट्स नोस्ट्रिल्स, ये करेक्ट है, लेकिन साथ में कुछ और भी था। हो जाता है ऐसा, कुछ नहीं, इट कैन। ठीक है, और बच्चे? हाँ जी, टू बाइट ऑफ दी थॉर्न्स, क्योंकि उसका जो फूड है मोस्टली थॉर्नी फूड होता है। वी नो दैट, यहाँ पे
कीकर जैसे प्लांट्स होते हैं, कैक्टस, कीकर, तो naturally he has to bite off the thorns also. Ritisha, ओके जी. और इसके अलावा कोई और पॉइंट किसी के माइंड में हो, यू कैन ऐड ऑन टू इट. आई विल जस्ट रिपीट इन अ मिनट. फर्स्ट हमने किया था, इट हैज लॉन्ग आई लैशेस and has a 2 layer of that to protect its delicate eyes from the sand. Second, it has broad and padded feet to walk easily on the sand. Hump on its back to get food or to get the nutrition during the shortage of the food. Long legs to protect the body means, या फिर आप ये भी लिख सकते हो, long legs to keep the body up to protect its body from the heat of the sand. Store water in its stomach so that it can live without water for some days. You can add on that. Next, it sweats very little and also urinates very little. Passes the urine very little so that the water will not be excreted out from its body. It has a long, very long, large intestine to pass out dry feces so that the water is to be stored in the body. It has thick lips to bite off the thorns, as its food mainly consists of thorny plants. Okay, ji? Anything else? Still, if there are some points in your mind, you might have studied, you can go through with that also, right? That is the adaptations of a camel. Including camel, let's discuss just one or two adaptations of few other animals. Number one, other desert animals. Some desert animals, yeah, most desert animals, they are nocturnal in nature. बिल्कुल, माउस दो तीन तरह के होते हैं डेजर्ट्स में. डेजर्ट्स में दो तीन तरह के माउस होते हैं. और एक, चलो आज का क्वेश्चन भी नोट कर लो, एक ऐसा माउस होता है जो 2 लेग्स पे खड़े होके जंप करता है, काफी लॉन्ग जंप्स करता है. मींस अदरवाइज माउस विल स्टैंड ऑन 4 फीट ना, लेकिन डेजर्ट में एक ऐसा माउस या रेड टाइप का क्रीचर है जो 2 लेग्स पे खड़े होता है और उसको जंप करता है, काफी लॉन्ग जंप्स लेके जाता है बिकॉज ऑफ हॉट सैंड. ठीक है, नहीं जी, रैबिट नहीं है, मैंने कहा माउस जैसा क्रीचर. माउस जैसा क्रीचर स्नेक कैसे हो गया? सर्च इट. दैट इज योर क्वेश्चन, नोट इट डाउन. वेट अ मिनट. हाँ जी, वो बताया तो था ब्राजील. चलो, एनी हाउ लिसन. ठीक है, तो ये आपका आज का सर्च वर्क है. यू विल फाइंड आउट देयर इज अ रैट और जस्ट लाइक अ एनिमल लाइक अ रैट. ठीक है, ही यूज्ड टू स्टैंड ऑन इट्स 2 feet एंड जंप्स हाई बिकॉज ऑफ द हॉट सैंड. आपने उसका नेम पता करके आना, राइट? And most of these desert animals, they are nocturnal. As you all know, the meaning of nocturnal is that these animals are active at night. Even there are some desert plants that blooms at night. Desert में कुछ plants ऐसे भी हैं जिनमें flowers रात को खिलते हैं, दिन में नहीं खिलते. वो आप सर्च, that is your choice. मैंने एक ही दी है. ठीक है, और इसके अलावा बेटे एक तो ये मेन पॉइंट है, नॉक्टर्नल का मीनिंग होता है एक्टिव एट नाइट, दैट यू मस्ट नो. एक और फीचर है स्पेशली, व्हाट इज दैट? ऑल नहीं, सम कैन बरो. सेकेंड, मोस्टली. सेकेंड, सम एनिमल्स हैव ब्लड वेसल्स नियर देयर ears. Animals have blood vessels near
ईयर्स, राइट। उनकी ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो ईयर्स के नियर होती हैं। कैन एनीवन टेल मी द रीजन? so that मूविंग ईयर जो उनके आसपास अराउंड द ईयर्स के अराउंड एयर मूव करती है, मूविंग एयर अराउंड द ईयर कीप द ब्लड कूल, keep blood cool. Able to survive in hotter climate. ठीक है, आई थिंक दैट्स ऑल। और जल्दी से एक रिकैप देख लेते हैं इस चैप्टर का, जिस बच्चे को कोई भी डाउट है सो जल्दी से रिकैप देख के लेट अस मूव टू द बैक एक्सरसाइजेस एंड वाइंड अप दिस चैप्टर। देन नहीं जी, आज हो जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स है ही नहीं ज्यादा, बैक एक्सरसाइजेस ही हैं। Hardly 4 to 5 question answers are there which you have to write it on, note down in your notebook. Okay, yes children, हाँ जी करनी है। पहले एक बार जल्दी से रिकैप देख लेते हैं इस चैप्टर का। सो करवाने लगी बेटे, 2 मिनट प्लीज। एक बार जरा चेक कर लो, आप सबने वेदर की है। व्हाट इज वेदर? आई एम नॉट आस्किंग द डेफिनेशन, एक बार चेक कर लो। एलिमेंट्स ऑफ वेदर हमने 4 किए थे, ठीक है, और उन एलिमेंट्स में हमने हाउ कैन वी मेजर इट ये हमने किया था। दैट यू ऑल मस्ट नो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द वेदर, दैट यू मस्ट नो। आफ्टर वेदर वी शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लाइमेट एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू इज डन। वेदर और क्लाइमेट का डिफरेंस हो गया। क्लाइमेट क्या होता है? दैट इज अ वेदर, एवरेज वेदर ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। देन वी हैड डिस्कस्ड फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट। व्हेन वी फिनिश्ड इट वी शिफ्ट टू द अडैप्टेशंस। अडैप्टेशंस हमने की हैं पोलर बियर, penguin. Mostly these two adaptations are to be covered under polar region. Tropical rain forest में प्लीज जब पेपर आता है ना बेटे, आप लोगों को यही नहीं याद आता ये एनिमल है कौन सा, तो ये चीज ध्यान रखना। मेन प्रॉब्लम ये आती है बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज दिस एनिमल। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हमने एनिमल्स किए थे, प्लीज एक बार उनको रिकॉल कर लो, कौन कौन से थे। Wait a minute. Red-eyed frog, lion-tailed macaw, या इसको आप कहते हो बियर्ड एप। ये प्लीज नोट कर लो, 2 अडेप्टेशंस तो यहीं से निकल जाती हैं इसकी, और यही हमें याद नहीं आता। ये मकाऊ मैम ने कुछ करवाया तो था, ये नहीं याद क्या था। बियर्ड एप, ठीक है। सिक्स एलिफेंट, आई थिंक इतना ही किया है। देन डेजर्ट्स में हमने कैमल किया है, और 2 जनरल हमने अडेप्टेशंस किए हैं डेजर्ट एनिमल्स की। हाँ जी, वेदर नहीं मेजर होता, वेदर के डिफरेंट एलिमेंट्स मेजर होते हैं। वेदर होता है मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। विल यू रिकॉल इट? Most probably next week there will be a test of this chapter, so get this chapter prepared. Tuesday आपके टेस्ट
शेड्यूल में। लिसन लिसन, टेस्ट ऑफलाइन ऑनलाइन होगा। जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं वो वीडियोस ऑन करके देंगे, ठीक है? और आप सबका टेस्ट होगा ऑफलाइन एज यूजुअल। मैंने आपको बता दिया नेक्स्ट वीक देयर विल बी अ टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर, सो गेट इट प्रिपेयर्ड एंड लेट्स डिस्कस बैक एक्सरसाइजेस नाउ। Page number. Yes, children. Please open page number 77 of your books. First question. Name the elements that determine the humidity of a place. Oh, sorry, that determine the weather of a place. Listen. Weather of a place. दो आई हैं, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, टेम्परेचर, विंड स्पीड एंड डायरेक्शन। करेक्ट श्रेया? हाँ जी, हाँ जी, यस। जसलीन अभी अकेला इतना नहीं है, पूरा सर्च करना। हाँ जी, नहीं, नो नीड। Yes, children. एक minute, let me speak, please. Boys, obviously the four elements of weathers you have to mention: temperature, humidity, rainfall, wind, speed and direction both. ठीक है? Wind, speed और direction इकट्ठा लिखना है. No need to explain. You will write that much only. Next. Okay. Yes, second bench, please stand up. हाँ जी. When are the maximum and minimum temperatures are likely during the day? Maximum temperature during? हाँ. और minimum temperature during? Yes, correct. We can observe minimum temperature during early morning and maximum temperature can be recorded in the afternoon time. Fill in the blanks. I hope you all can speak. The average weather taken over a long period of time is called climate. Right? Correct, it is climate. Second, place which receive. Better to give the answer rather than calling them. Let me speak the question, then you will give the answer. Okay? A place receives very little rainfall and the temperature high throughout the year. Yes, it is बेटे very little rainfall है तो dry and temperature high. High का क्या मतलब है? Hot. And which place is this? कौन सी place होती है? Desert. ठीक है? This is a desert that is having a hot and dry climate. Yes. रुक जाओ. Himalaya. The two regions of the earth with extreme climatic conditions are dash and dash. रुक जाओ. पोलर और ट्रॉपिकल की जगह पोलर और डेजर्ट करो, ज्यादा एक्सट्रीम है. लिख सकते हो, ठीक है? लेकिन माउंटेन्स के बजाय भी अगर आप पोलर करते हो ना तो वहां पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम चेंजेस है. एक्सट्रीम मींस बिल्कुल एंड पॉइंट. अगर ट्रॉपिकल आता है वो इन बिटवीन वाला पॉइंट आ जाता है. डेजर्ट. हाँ जी, ये आपको क्वेश्चन कल दिया हुआ है. इंडिकेट द क्लाइमेट इन द फॉलोइंग एरियाज. जम्मू एंड कश्मीर में कैसा होता है?
सर ने नेट से कॉपी किया हुआ है या पुरानी बुक्स हैं? चलो, एनी हाउ करेक्ट। जम्मू एंड कश्मीर में मॉडरेटली हॉट क्लाइमेट है, मींस इट इज एडजस्टेबल। केरला में, यस, केरला में कभी कोई समर्स में घूमने गया? डोंट इवन ट्राई। वहां पे आपको बिकॉज ऑफ द ओशियन, आपके साथ सी है केरला के साथ, तो वहां पे आपको पसीना भी नहीं आएगा बिकॉज इट्स अ वेट टेम्परेचर एंड इट इज क्वाइट वेरी हॉट ओवर देयर। राजस्थान, वेरी क्लियर। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, हाँ जी, वी हैड स्टडीड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यानी कि आपकी ईस्टर्न स्टेट्स में वेट क्लाइमेट होता है। Which of the two changes frequently, weather or climate? Weather. Now, following are the few characteristics of the animals. You have to mention whether these animals belong to the polar region or to the tropical rainforest. Right? First animal, it diets heavy on fruits. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सबने बोल दिया, बट आई वांट टू नो द रीजन। आपको कैसे पता चलता है कि ये ट्रॉपिकल रेन? एक मिनट, हाँ जी, लास्ट बेंच प्लीज स्टैंड अप। हाँ जी, एक सेकेंड, कोई बात नहीं। इफ अ एनिमल डाइट्स हेवीली ऑन फ्रूट्स, यू टेल मी इट बिलोंग्स टू द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। हाउ डू यू कम टू नो? हाँ, आपने ट्रॉपिकल तो बोल दिया, ट्रॉपिकल का है, ये आपको कहां से पता चला, किस पॉइंट से पता चला? हाँ जी, and fruits are on the trees, and most of the trees are available in tropical rainforest. That is why this animal belongs to tropical rainforest. That is the exact reason for this. Sit down. White fur, correct. White fur belongs to polar region animals. And can you name this animal? Most common, polar bear. Third, this animal needs to migrate polar region. Some animals from the polar region needs to migrate. Can you name one example? Siberian crane or birds. ठीक है, birds भी आप लिख सकते हो। Fourth, loud voice. How can you tell me? Elephant की और even humans की, especially आपके teachers की. We all are living in the rainforest also. ठीक है? नहीं, चलो ठीक है, it is a forest of humans. Anyhow, come back to next. Sticky pads on the feet. How? One minute. Sticky pads on the feet. चलो, स्टिकी नहीं होते, स्टिकी मीन्स चिपचिपे। Listen, wait, don't give answers like this. स्टिकी पैड्स क्या होते हैं? हाँ जी, क्या दिखा रहे हो? किसके दिए हुए? किसके दिए हुए? अच्छा, और इवन ट्रॉपिकल एनिमल्स के भी होते हैं टू नीड टू क्लाइंब ऑन द ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल रेड आइड फ्रॉग में हमने किया है। हाँ, इसका आंसर ट्रॉपिकल आएगा। पोलर स्टिकी नहीं होते पेंगुइन्स के, दे कैन वेब्ड फीट्स होते हैं। आई थिंक स्ट्रीमलाइन बॉडी है, वेब्ड फीट्स है। लेट मी वेट। बेटे देखो, पेंगुइन्स का वेब्ड फीट लिखा हुआ है, स्टिकी फीट नहीं है। ठीक है, वेब है, स्टिक नहीं है। नेक्स्ट मूव्स टू द नेक्स्ट, लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन। बिल्कुल ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स करेक्ट। पोलर रीजन, वाइड एंड लार्ज पॉज,
polar animals to move easily on snow. Bright colors, हाँ जी, ब्राइट कलर्स हमारे ट्रॉपिकल रीजन एनिमल्स में होते हैं, जैसे हमने 2-3 किए हैं. चुकन है, उसकी बीक, इट इज वेरी कलरफुल. पैरेट, वी ऑल यूज्ड टू सी, इट इज आल्सो अ कलरफुल बर्ड. कलरफुल क्यों होते हैं? बिकॉज देयर कलर्स कैन सर्वाइव एंड दे कैन लिव इन डिफरेंट एटमॉस्फेयर टू कैमोफ्लेज. टाइगर अपने तरीके से कैमोफ्लेज करता है, लॉयन अपने तरीके से. नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग टेल्स. Can you give me the example? Monkey. Monkey की टेल काफी स्ट्रॉन्ग होती है टू स्विंग. एलिफेंट की भी होती है, हैवी होती है, वो आपको हिट करती है, हैवी होती है. स्ट्रॉन्ग भी लिख सकते हो बट इट इज टू हैवी. स्ट्रॉन्ग मीन्स अगर कोई एनिमल या इंसेक्ट उसको यूज कर रहा है फॉर समथिंग, लाइक मंकी इज यूजिंग इट टू स्विंग इटसेल्फ. लॉन्ग एंड लार्ज बीक, बिल्कुल ठीक है बेटे, इट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. नेक्स्ट, 7th क्वेश्चन, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स. व्हाई? यस अर्शिया. यस बेटे, इसके मेनली 2 ही रीजंस हैं, बाकी लैंग्वेज आप लोगों की अपनी है. आई विल रिपीट लक्ष्य, डोंट वरी. इसके बेसिकली देयर आर 2 रीजंस. नंबर 1 रीजन इज दिस, it is having a favorable climatic conditions, neither too hot nor too cold. Second, availability of food is there in these regions. ठीक है, बेसिकली रीजंस 2 ही है. इस दोनों रीजंस को आपने एक्सप्लेन करना है अपने वे में, दैट यू विल एक्सप्लेन इट इन योर ओन वे. अवेलेबिलिटी ऑफ फूड और फेवरेबल एडजस्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस, या मॉडरेट भी लिख सकते हो, कंफर्टेबल भी लिख सकते हो. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, explain why we find animals of certain kind living in particular climatic conditions. हाँ जी, हाँ जी बोलो. Only some animals can adapt to the particular climatic conditions, and they have to adapt the features of that place. आपको पता है आपने क्या बोला? Do you know what you have said? Yes, we will continue tomorrow.